Some people look for beautiful places, others simply create them. Well, today I am at Mayuri International, a furniture manufacturing company based out of South India. Established in 2010 by Srimati Maheshwari Malika, today Mayuri International manufactures furnitures for different sectors including corporates, hospitality, educational institute and residential sector. Now Mayuri International is in Saharanpur to take the legacy forward of Indian handicrafts to the world. And we have the pleasure to share this space with the Managing Director of Mayuri International, Mr. Sadiq. Welcome, sir. And I'm really curious to ask this one question, that why North India? Like, what inspired you to come here all the way from South? Yeah, to be very honest, no, we never had a plan to come to North India. Okay, I never traveled to North India before. Okay, never. We always used to travel South India, and I used to travel abroad as well. But last few months in Feb, we got an order. Okay, he is one of the Dubai clients. He got an order and he told us to do carving furniture. We never had an experience. We told the client we never had an experience because of the reputation. He want us to do that. So we explored the technicians. Actually, we explored the technicians in South India. We never got skilled, perfect technicians. And even though we got few, there were timelines of doing this furniture was almost like 3 to 4 months, and client was not ready to wait. With no options, I had to explore, and in search of technicians, I landed up in Saharanpur. Okay, then I hired a few carpenters here, and I got the project done. Then it inspired me. The amount of skilled laborers available here, the quality of food available here, it's not there in South India. So what I wanted to do is, why not explore this market? Why not take this handicrafts where there are more skilled workers, there are more, what do you say, like fine carvings here. Why don't we do this business, take this carving furnitures, the fine art to South? And later we decided that we wanted to export this furniture to the outside world. So that's how I landed here. So it's been more than a decade that Mayuri International is in the market, and be it the corporates or education institute, Mayuri International manufactures furnitures for all the sectors. Like, how you have captured such a big client base? Okay. To answer this question, actually, I should say it's a God's grace. All my life, I was into furniture. My career started in furniture. First, I was into corporate furniture. Then, when I quit my job, the last job, I got into home furniture segment. There, I gained little bit of experiences. All these years, what we were doing is, the gap where we found is, all the big corporates, these big companies, the big manufacturing companies, no, they have certain standard products. Okay. And when you come to customization, no, they want bulk quantity. And people who wanted a smaller quantity to make it customization, no, it was not possible almost for 5-6 years back. So there we found a gap, that why can't we do customization? And from there our journey started. And the specialization of a company is whether you bring one piece or you bring 10 pieces, no, to make it a customized furniture for their home. We do that. We never say no to any corporate, we never say no to any education institutes, we never say no to any hotel projects. Whatever customization the architects or interior designers bring to us, or a client directly bring to us, whether it is one piece or it is 10 pieces, we are happy to do for them. And our one more advantage here is, our costing is very less. We do not, because we are not a dealer, as a manufacturer, our costing is less. Because when you say customization, suddenly you see there is a price increase. We don't do that. If it's a standard product and you want to do a customization, we do at the same cost as what is the actual product is. For customization, we never charge extra.
So over a period of years, our client based, we have developed our client base from a small cafe furniture to the top corporates. We have done big hotels, five-star hotels. We have done top corporates, naming like Oracle or maybe IBM. Sometimes direct, sometimes through contractors, and sometimes through architects, sometimes through interior designers. So we work with various agencies to get our product delivered. So this is the journey what we have carried all these years. And sir, because of such vast client base, what are the major challenges that you face? Like still being so experienced in the market, it's been a decade, like almost 12 years. So what are those challenges that you face? There is no challenge as such in our industry, in furniture industry. Simple furniture manufacturing and delivering to the customer. If you ask specific, no, still I'll give you one challenge. The one challenge what we face is on the delivery timelines. Certain customers, what they want is, when it is a standard product, we know, our factory knows what to produce. If it comes in a customization, always there is a time consumption in customization. Okay? I say it's not that easy that you bring a product, you bring a design and you ask us to customize it, and you still expect the delivery timeline to be same as the standard product. There where we get stuck, and there where the challenge comes in. To get the customization also done, to get the samples approved, and to start the actual production and to deliver the product. Normally in a project we get hardly 3 to 4 weeks of delivery, and once it comes as a customization, only the sampling takes another week extra. But still customer wanted in the same timeline. When he is saying 3 weeks, it means 3 weeks. So if he says 4 weeks, we need to deliver it in 4 weeks. Whether we do samples, whether we do actual production. Because what in South, no, there is, we also understands customer pain point. The pain point is the real estate value, the real estate rents or the real estate value is more. Saharanpur, as you all know, is the city of wood, and with a team of expert technicians, Mayuri International is here to establish their craft. Well, one of those expert sculptor is sitting right here with us, Haji Mohammad Ansari, popularly known as Ustad Ji. Well, it is a matter of pride that Ustad Ji has represented our country internationally at World Wood Day in China. Sir, welcome. और सर, आपका अनुभव जानने से पहले मैं यहाँ पे सर से एक सवाल पूछना चाहूँगी. सर, where did you find Ustad Ji and how did you tie up with him? We want to walk with Haji Saab for rest of his life and take his legacy forward, to take his works, show it to the world, and in turn we also do this fine art, and we also supply to our customers, not charging extraordinary pricings. Take this fine art to our South India and also and foreign countries as well. उस्ताद जी, हम आपके अनुभव के बारे में अब जानना चाहेंगे. आप बचपन से इस कला में हैं और पहले से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा, हमें प्लीज़ बताइए कुछ. मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अगर मैं बोलूँ, मैंने अपने लिए तो बहुत मेहनत करके ये सीखा, और इतनी मेहनत करके सीखा कि मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मैंने इतनी मेहनत करी क्या. मतलब तकरीबन 13-13.5 साल तक के मैं बॉम्बे, दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, इस तरीके से जगह जगहों पे, मतलब हर उसमें शहर में जहाँ भी काम हुआ मैंने काम करा, काम सीखा. तो मैंने इन 13-13.5 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 16 घंटे काम न करा हो. मगर मुझे कुछ नया इससे हट के करना, तो फिर मैं वो 8 बजे के बाद रात को तकरीबन 11-12 बजे तक के, मतलब मुझे गुलाब का फूल बनाना,
तो एक गुलाब का फूल मैं तोड़ के लाया और उसको सामने, क्योंकि मालिक को तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि उस पर तो गुलाब के फूलों का ऑर्डर ही नहीं आएगा, वो तो जो उसके पास ऑर्डर है वो वही बोल लेगा कि ये करो मुझे। तो 8 बजे के बाद में फिर अपनी एक अलग से कला को मतलब जन्म दे रहा था। तो बहुत लोगों ने, बहुत एक्सपोर्टरों ने विदेश के लिए मुझे बोला। एक हमारे जालंधर के जो है देवेंद्र सिंह बेदी हुआ करें सरदार जी, उन्होंने तो मुझे बहुत ही कुछ फैसिलिटी देने की बात कही और उन्होंने ही मस्कत के बादशाह का काम पकड़ के लाए थे महल का, वो मेरे से यहीं पे करवाया था। जब उन्होंने मेरी कला देखी, मोहम्मद अली आप जो है मेरे साथ जुड़ो, सहारनपुर को छोड़ दो। उन्होंने मुझसे बोला कि जो गाड़ी मेरे पे है ये आप पे रहेगी, जैसे बंगले में मैं रहता हूँ आपको ऐसे ही बंगला लेके दूंगा, बस आप मेरे साथ रहोगे, सहारनपुर क्या आप हिंदुस्तान छोड़ दो। तो मैंने उनकी बात को नहीं माना। मैंने कहा जी मुझे जो भी काम करना मुझे अपने शहर के लिए करना और मैं अपने शहर का नाम ही विदेश तक पहुंचाना चाहूँ, क्योंकि कंपटीशन में भी हिस्सा 2014 में मैंने चाइना में लिया और यहाँ भी, और कहाँ कहाँ मेरा काम कहाँ कहाँ किस किस तरह से गया, मेरे भी कुछ चंद जगह याद है। जैसे अमेरिका ही एक, मैं तो अमेरिका ही कह दूँ बस, वो अब उसमें कोई न्यूयॉर्क है क्या राज्य है क्या नहीं है। तो जैसे कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मस्कत में, और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत फेमस जगह पे इलिया, हमारे जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाई आजम खान ने, तो उसमें भी बहुत काम हुआ हुआ मेरे हाथ का, बड़ा सराहा था मुझे आजम साहब ने बहुत। और जैसे तुम्हारे उत्तराखंड की विधानसभा, मतलब वहाँ मुझे आज बहुत इज्जत देते हैं वो लोग, बाकी खाली इज्जत से क्या हो, उनके बहुत काम करे। आप देखोगे भी यहीं पे ही विधानसभा का लग रहा है एक, तो वो भी पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी थे अध्यक्ष, अब ये हमारे भाई जो खंडूरी मुख्यमंत्री थे उनकी लड़की अब बनी, तो वो भी हमारा लेके ये टेम्पल लेके गए थे मोदी साहब पे, अमित शाह पे। और हमारे यहाँ भी जो नेता लोग हैं वो भी जब कहीं उनको जाना हो वो भी गिफ्ट आके हाजी जी से ही मांगे कि कोई ऐसा गिफ्ट दो हमें कि हम अखिलेश यादव जी पे जा रहे और हमें गिफ्ट करना, तो वो भी आके मेरे से ही ले जाएंगे जी। वही योगी जी पे, योगी जी से जा रहा, अभी योगी जी पे भी पहुंचाया था ये टेम्पल। हमारे यहाँ सिद्धांत यादव हैं जिला उद्योग में, तो कि मेरी योगी जी से मतलब बुलाया उन्होंने मुझे, हाजी जी कोई वो तो गिफ्ट, तो वो भी ले गए। इस तरीके से मतलब बस ये हो ही रहा है बस, अब और तो कोई रास्ता अब दिख नहीं रहा। अब थोड़ी बची अब जा उम्र, तो सादिक भाई मुझे मेरी किस्मत से अल्लाह ने मिलवाया इनको। अब ये बहुत मेहनत, जान भी, माल भी, वक्त भी, ये सब अपना मेरे ऊपर खर्च कर रहे और मुझे काफ़ी हौसला अफजाई मेरी कर रहे कि हाजी साहब आपको मैं एक बार इंटरनेशनल उस पर देखना चाहता हूँ, आपकी कला ये कहाँ छुपी हुई थी, ये कौन लोग मतलब आपको कहीं दिखाया ही नहीं गया, अपना काम कराया और चले गए, और बस तुम अपना यही से कौड़ियों को भाव बेच रहे इसको। मैं थोड़ा पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। हाजी साहब की जो बात है ना, उसमें थोड़ी गहराई आपको महसूस हुई होगी। उसमें कुछ दर्द भी है, कुछ दुख भी है और कुछ खुशी भी है कि कुछ हासिल किया है। भले ये दुनिया को मालूम हो या नहीं मालूम हो, वो अपने आप में खुश है कि मैं किस काबिल हूँ।
एज मयूर इंटरनेशनल के डायरेक्टर के नाते आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू बैक होम, ओके, इन माई ओन कंपनी. वाई आई केम ऑल द वे हियर इज आई गॉट इंस्पायर्ड बाई हाजी साहब. इनके काम देखा मैंने, इनके कला देखा मैंने, और मेन थिंग इज इनको हमेशा आदमी लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है. खुद आगे बढ़ गए, हाजी साहब को पीछे छोड़ गए. सी द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस, इन Saharanpur, when you see, wherever there is an art, they get trained from the childhood. Okay, it's not that they have graduated then they go for training. It doesn't happen like that. बड़े शहरों में क्या होता है, स्कूल ऑफ आर्ट बोला जाता है, लेकिन जो भी स्कूल ऑफ आर्ट से सीख के आते हैं, कोई चंद लोग होते हैं जो इंटरनेशनल मंच पे चले जाते हैं या कुछ पॉपुलैरिटी हो जाता है क्योंकि उनके पास फंड्स रहते हैं, उनके पास इंटरनेट एक्सेस रहते हैं, उनको बूस्ट करने के लिए उनके पेरेंट्स रहते हैं, सब लोग रहते हैं. गरीब क्या करेगा, उसको सीखने का हक नहीं है. यू गो टू द नेट, यू सर्च फॉर स्कल्पचर्स. what you get is you get only foreign people, sculptures from Italy, sculptures from US, sculptures from France, Japan. इंडिया में कितने स्कल्पचर्स है भाई? देर आर, रहेंगे या ओनली फ्यू यू कैन सी ऑन द नेट. हाजी साहब के जैसे कलाकारों के बारे में दुनिया जानती नहीं है. अगर ये भी जानते तो इनका कला भी ये फैलाते, इनके बारे में भी दुनिया जानती. लेकिन अभी क्या हुआ है, इनके जैसे बहुत कलाकार लोग आज भी है लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है. मैं क्यों यहाँ पर हूँ ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर, वो छोड़ के यहाँ पर आके बैठा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ पर बिजनेस नहीं है. मुझे इनके कला को आगे लेके जाना है, इनके कला के साथ हमारे कंपनी जुड़ना है. हमको फ़ायदा होगा तो हाजी साहब को फ़ायदा होगा, हाजी साहब को फ़ायदा होगा तो हमको फ़ायदा होगा. क्योंकि हाजी साहब को सबने फ़ायदा उठाया, ऐसे उस्ताद जी को आगे लेके आने के लिए हम लोगों ने जुड़ा है. मैंने खुद पर्सनली आई हैव टेकन इनिशिएटिव टू कम हियर टू एस्टैब्लिश अ कंपनी हियर सो दैट हाजी साहब इज विथ अस एंड वी टेक दिस हिज लेगेसी फॉरवर्ड एंड टू शो हिम टू दिस वर्ल्ड कि हाजी साहब है क्या चीज़, इनकी कला क्या है, इनकी हुनर क्या है, और इनके साथ और क्या हो सकता है और कितने लोग जुड़ सकते हैं, इनकी कला का फ़ायदा और कितने लोग देख सकते हैं. कला इज़ एन आर्ट, और इनके कला मतलब अगर हाजी साहब कल के दिन नहीं भी है लेकिन इनकी कला पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ तक याद रहे. मैं हमारा मयूर इंटरनेशनल टू कम ओवर हियर एंड टू टाई अप विथ हाजी साहब, उस्ताद जी, द ओनली पर्पज इज़ टू टेक दिस आर्ट फॉरवर्ड. उस्ताद जी, मैं कुछ यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें देख रही हूँ, पेंटिंग्स देख रही हूँ, ये सब आपने बनाई है? ये मेरी इकले की भी कला नहीं है. ये मेरे साथ जो सब भाई जुड़ते हैं आ रहे आज तक के, मेरे साथ पूरी ज़िंदगी हो गई, मुझे आना जाना लगा रहता है. किसी को बेहतर कोई चांस मिल रहा तो मैं खुद ही उसको ये मौका ना खोवे भाई, तू वहाँ चला जा. तो इस तरीके से जैसे भाई आपके शूट करने वाले हैं, ये हैं, आप हैं, पूरी टीम मिलके ही कुछ बना पाएगी. हाँ जी. इसमें मेन डायरेक्शन मेरा रहा है. अब थोड़ी मेरी उम्र ज़्यादा होती जा रही, पहले मैं खुद करने की क्षमता रखूँ था, तो अब डायरेक्शन दे के ज़्यादा मैं कुछ करा लूँ. जो हुनर मेरे अंदर है वो उस पर भी चला जाता है और काम भी हो जाता है. तो इसमें अब हम 10 आदमी 20 आदमी जितने भी हम हैं, उनका सबका योगदान है. मैं बोल दूं कि ये मेरा ही है सारा, वो भी एक नाइंसाफ़ी होगी इन लोगों के साथ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं. वो एक अलग बात है, जिसका जितना हिस्सा बैठ रहा भाई वो हम आपस में बांट लें. उस्ताद जी, आपकी एक बहुत ही मशहूर कला है जिसको मैं सबको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप कुछ बताइए उस कला के बारे में. हमें इस कलाकार के बारे में बताना तो बहुत मुश्किल काम है. ये एक ऐसी चीज़ है कि ये कभी मुकम्मल नहीं होती. कला में तो जितना घुसते जाओ इतना ही आपको नयापन एक
मिलता जाएगा। और इसके बारे में तो मैं क्या बतलाऊँ, ये तो एक यादगार मेरी बन गई। इसके ख़रीदार भी बहुत आए मगर मैंने इसको नहीं दी। वक्त भी कुछ ऐसे आए कि ये दे दी जावे, कुछ घर का चल जावे, मगर वो नहीं चला। बाकी ये तो मैंने रोक ही ली किसी तरह से। इससे पहले जो मतलब बहुत कई तरह के मॉडल कई किसी तरह के बनाए, तो वो लोगों के घरों में बंद हो गए। पूरी ज़िंदगी होगी बनाते बनाते, ये भी और चीज़ें भी बहुत, यही नहीं कि यही इसी चीज़ के हम कलाकार हैं। मतलब हमें तो कुछ भी दे दो, बस हम बना देंगे और लोग लेके आवे, बनवा के चले जावे, मगर वो घर में लोगों के कैद हो जाएं, उनकी कोई शोहरत जो उन्हें मिलनी चाहिए थी और उस लेवल पे फिर हमें उसके ऑर्डर रिपीट होने चाहिए थे। तो यह हमने बड़ी मुश्किल से तो एक बनाया सैंपल, हमने सब कुछ झोंक दिया उसमें। अब वो उसमें लागत बहुत आ गई। अगर उसका ऑर्डर रिपीट हमें मिलता 10 पीस, 20 पीस, 100 पीस, तो हमें भी बेनिफिट मिलता, क्योंकि हम उसके एक्सपर्ट हो गए थे। अब वो तो एक ही बना रहे, एक ही जाके घर में कैद हो गया। दूसरा बंदा दूसरा मॉडल ले आया, अब वो बनाया, उस पर मेहनत बहुत करी, इतनी मेहनत करी कि अपनी इसमें जान निकाल के यार घेर दें हम, मगर वो फिर बनवा के वो फिर कैद हो गई। तो अब वही जैसे मैंने पहले बोल रहा था कि सादिक भाई ने एक कदम उठाया अपना इसे शोहरत दिलाने का। अल्लाह करे कि ये ऐसा हो, और बस कला का तो कोई हद ही नहीं है जी। और मेरी अकेले की भी मेहनत नहीं इसमें होती। अब ख़ास तौर से, पहले तो होती जब मेरे में एक जवान यंग था मैं, जब हुए थी। अब तो ये सारी टीम का मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि सभी की मेहनत इसमें, इन्हें भी नहीं नज़रअंदाज करा जा सकता। इनका भी पूरा रोल इसके अंदर मेरे से ज़्यादा रोल इनका रहा है। बस एक अब तो बस मैं एक इनका रहबर बन गया, वरना कर तो यही रहे। कहीं अटक गए तो भाई मैंने बता दिया इस तरह कर लो। तो अब इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा। लड़के नए नए सीखने आ रहे, जितनी कोशिश हो सके, जितनी उसकी लगे मुझे कि ये भी कोशिश कर रहा, तो उस पर इतनी मेहनत मैं भी कर लूँ। तो इस हुनर को ज़िंदा रखने के लिए मैं बहुत जतन करूँ, बहुत मतलब लॉस में भी मैं चला जाऊँ, लेकिन ये ज़िंदा रहे। और ख़ास तौर से मेरे सहारनपुर का नाम ये रोशन हो पूरी दुनिया में, बस यही मेरी ख्वाहिश है। कलाकार को क्या चाहिए? कलाकार को तो तारीफ़ चाहिए, इसे पैसा नहीं चाहिए। और पैसा मिल जा तो इस पे 4 चांद लग जा, फिर इसका ये एक कलाकार का एक बिजनेस बन जा। तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, जितना है उतना चला रहे। बस फिर घूम फिर के मैं सादिक भाई पे आ जाऊंगा। हाँ जी, एक तो आश्वासन हो, एक ये ओरिजिनल बिल्कुल दिल से, मतलब वो सब कुछ करेंगे और कर रहे जिसकी मुझे तलाश थी। बस ये एक फरिश्ते के रूप में कह लो या इंसान के नाते कह लो, कुछ भी कह लो। तो इंशाअल्लाह जो कदम इन्होंने उठाया और मैंने भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो मेरे से होगा मैं कर रहा, तो दोनों को मिल के ऊपर वाला कामयाब भी देगा। बस अब तो यही इसी बात पे मेहनत करनी, जो थोड़ी सी बची ज़िंदगी बस। नहीं तो वो तो ख़त्म ही हो गई, जो जवानी थी, जोश था। अभी हम लोग उस्ताद जी की टीम के साथ खड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं सर आपसे निवेदन करूंगी कि आप कुछ थोड़ा हमें बताएं अपनी टीम के बारे में कि कौन सी कला में माहिर है सब लोग। कला तो इनमें सब में कूट के मतलब नस नस में कला भरी हुई, मगर बदकिस्मती से बस इन्हें आगे का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि कोई दिखाने वाला नहीं है। मतलब ये हमारे भाई हफीज खड़े हैं, ये भाई हफीज हैं हमारे। तो
अब कुछ भी करा लो, जो जितना कारखाने में जितना भी इसमें काम है कुछ भी करा लो, ये मेरा भाई कुर्बान खड़ा है। बदकिस्मती से हैदराबाद में इतना अच्छा काम इसने कर लिया था, मगर एक एक्सीडेंट होने की वजह से, इलाज इसे मुकम्मल न मिलने की वजह से बस आज दर बदर मतलब कोई अपना मतलब निकालने के लिए बस कोई पकड़ के ले गया, मेरा जरा सा ये कर दे, कोई ये कर दे, ये कर दे, मतलब सपोर्ट है ही नहीं पीछे कोई। ऐसे ये कुर्बान मेरे द्वारे बचपन से है ये, तो सभी कर ले, ये कारवीन भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, वो भी जितने भी इसमें काम है, कारवीन कारपेंटर, ये सब कारपेंटर भाई हैं, ये मेरे पालिश वाले हैं जो इसे ऐसा निखार और रूप देते हैं कि ये हमारी कला में और चार चांद लगा दे। मैं सादिक सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें आज इतना सब कुछ आज हमने जाना है, तो हमें कुछ आखिर में बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं सर। Thank you so much for coming and knowing about Mayuri, knowing about Ustad ji. I'm really glad. The only thing what I request is let this conversation, let this video or whatever it is, let's spread it to the world. Yes. Okay. Let us spread the greatness of Haji Saab about his art. है ना हाजी साहब, मैं तो हमारे साहब के साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ और आखिरी दम तक मैं जुड़ा रहूँगा, भले कुछ भी हो जाए। हमको कला को आगे लेके जाना है, वही मेरा मकसद है, मेरा कंपनी का मकसद है। और एनीवे आई शुड थैंक हाजी साहब टू गिविंग मी दैट स्पेस। मुझे एक बेटा जैसा एक स्पेस दिया, मेरे साथ जुड़े, मैं इनके शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसे वर्कर्स तो बहुत मिल जाते हैं, कारपेंटर्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एक कलाकार मिलना एक खुशनसीबी की बात है। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे हस्ती के साथ मैं जुड़ा हूँ। हाजी साहब, thank you so much, and madam, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. So this is how Mayuri International was launched in Saharanpur. We highly request you to share this video and spread the word. क्योंकि उस्ताद जी जैसे जाने कितने कलाकार होंगे जिनकी कला को वो पहचान नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि उस्ताद जी और उन सभी कलाकारों को उनकी कला की वजह से जाना जाए, ना कि इन परिस्थितियों की वजह से। थैंक यू।